Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, all of you. I request all of you to please keep yourself muted as long as you don't want to say anything. If you want to say something, please raise your hand and then you will be allowed to speak. Fine. By default, I am keeping all of you at mute. Sure. Still, some people are still joining. One thing that I would like to announce all of you before I start the class. I think this is my first class during the lockdown with all of you. You are requested to please switch on your videos. Those who have not switched on their videos as yet, I request all of you to please switch on their videos. I need not say individually to all of you, है ना? एक बार instruction दे दिया मतलब दे दिया. So for all of you, it is be it Ehtasam Rajwa, be it Nikhil Tripathi, all of you are visible to me on my screen. So request all of you to please switch on your video and do not delay the class unnecessary. Good. Milli, Nikhil Tripathi, Jay Mangal. I need not say all of your names, guys. Please understand this. Aman Gautam, Arman Khan, Shubham Raj, जो भी हैं आप लोग, कुमारी अदिति. Nikhil Tripathi, you need to switch on the video. It's not happening. What is the answer? What kind of answer is this? It's not happening. Chali, how have you been? I hope all of you are safe and all your near and dear ones are safe and sound. Since this is a very small session, I guess of 40 minutes only, so I'll be not going into that much of recap. We'll be trying to cover up the content as much as we can in this 40 minutes span of time. Having said that, we also have a session lined up tomorrow and day after. We'll try to finish up this topic. Now, one thing is pretty good with FMS service is that we are landing very safely with regard to the syllabus. You must have observed in terms of the content also. So this is a blessing in disguise that what we have done in the theory classes that has pretty worked in favor of us without realizing that we will be facing the lockdown and all. We have done, I hope you guys have seen the syllabus as I have been telling you continuously during the semester. Out of these 5 units, we have done with the 4 units. Am I right? Correct me if I'm wrong. If anyone is having any kind of difficulty, then I'm ready to address that. In case of any doubt with those 4 units, I am ready to address that, because since we are nearing to the term and exam, I don't want any one of you to have some kind of doubt with regard to the syllabus. Now, since I have told you that we are left with only unit 5, and it's a pretty large unit. It's a pretty large unit, and it requires some, I think 2-3 sessions will require on it. Please keep yourself muted as long as you don't want to speak anything. Whosoever's mic is unmute. Let me just take you through the presentation. Let me know if you can see my screen. Sir. It's visible? Yes, sir. Yes, sir. Good. So as I have been doing in my theory classes, while offline, I'll be doing the same in online also. Unit 5, non-alcoholic beverage. I assume that you all have seen the syllabus, what you have to study. If not, then I'm there for you. So yeah, this is what we need to know as per the National Council syllabus. Those who have not seen the syllabus, this is going to help you out. We have to understand about the classification of non-alcoholic beverage, that is nourishing, stimulating, and refreshing beverages. Tea, we will be learning about the origin and manufacturing of tea.
their types and brands. Coffee, including its origin, manufacturing, what are different types of coffees that are popular in the industry, what is mocha coffee, what is cappuccino, all these you must have heard, and how coffee is made, which plant is responsible for blending of coffee and all. Followed by juices and soft drinks, and bit about cocoa and malted beverages, origin and manufacture also. I wish that you guys come back soon so that we can have a practical class also on the same, because practical of mocktails and non-alcoholic beverages is pretty interesting practical with regard to the first semester syllabus. So I wish that all of you come back very soon. Let us understand this first word. As I have been doing in my theory classes also, there are 3 words into this: non-alcoholic beverages, right? We will be addressing these keywords one by one so that our concept is pretty clear. Now, beverage, as I have already told you in many of my classes, that beverage is any potable liquid which satisfies our physiological and psychological needs. Similar with the food. Why do we eat food? We eat food because to survive, to satisfy our physical and psychological needs. When I say physical needs, that means I mean to say we need nourishment. Our body needs nourishment to survive, to cope up with these challenges. The academics, what you're going through, जो आप classes कर रहे हैं, जो आप walk करते हैं, जो आप running करते हैं, जो gym करते हैं, it requires energy, right? So you eat the food and then you derive the energy from that. Similarly, all those foods are not responsible for that. Many a times, even when our appetite is not that high, we tend to eat something, out of our psychological needs. हम फ्रेंच फ्राइज देखते हैं, हमको पता है उसमें न्यूट्रिशन नहीं है कुछ, बट हम खाने की कोशिश करते हैं, करेक्ट? इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, चिप्स हो गया या वॉट एवर, बिकॉज आवर साइकोलॉजिकल नीड्स इज ऑल्सो addressed by that. Similarly, with regard to beverage, beverage is a potable liquid which comes from the word bever, which generally means it is something to drink. And we all are aware about that. We have been drinking beverages. Can anyone tell me which is the most popular beverage across the world? Yeah. Coca. Vodka? Someone said vodka. Tea, sir. Tea. Tea. Someone said tea. Okay. Anyone else? Any other popular beverage? Sir, juices. Juice. And which is the let me just reframe my question. Which is the most popular beverage across the globe? Sir, Coca-Cola. Coca-Cola. Okay. Anyone else? Sir, soft drinks. When I say beverage, I mean to say popular. जब मैं कह रहा हूँ इसका मतलब Tea. वाइड रीच की बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो लोग पीते हैं उसकी बात हो रही है. आंसर केम कोका कोला, देन अदर आंसर केम जूसेस, टी भी किसी ने बोला, और कोई आंसर? कॉफी सर, कॉफी, वेरी गुड. और कोई? Wine and vodka, sir. Wine, vodka. Okay, fine. What if I tell you all these answers are not correct? Maybe water. Correct, absolutely excellent answer, Nikhil Tripathi. So water is the most widely used beverage across the world. So whenever we think about, see why I am trying to bring you to this point, because whenever we think about beverage, we think about soft drinks, beer, whiskey, rum, and hard drinks, beer, whiskey, brandy, rum, gin, vodka. We barely think about water. See, come on, water is one thing which is our necessity also. Can we survive without water? Can we survive without water? No. Can we survive without Coca-Cola? Yes, sir. Without tea? Without coffee? Yes, we can. So the answer is pretty clear to you. But so water is our necessity also. It addresses our thirst, quench. As at the same time, it provides us, psychological and physical needs also. Coca-Cola does not provide us physical needs. Coca-Cola नहीं भी पिएंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं, मतलब फायदा नहीं होगा, नुकसान भी तो नहीं होगा कम से कम, बल्कि फायदा ही होगा कुछ ना कुछ, करेक्ट? बट वाटर में ऐसा नहीं है. तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, वाटर आपका सिलेबस बहुत कम कवर किया हुआ है, ठीक है? वाटर आप जरूर पढ़िए. समवन इज सेइंग समथिंग? या सो वाटर आप जरूर पढ़िए. वाटर के बारे में आई रिकमेंड यू वन बुक विच इज लिली क्रैप. उसके बारे में आप पढ़िए, वाटर के बारे में, मिनरल वाटर, स्प्रिंग वाटर. These are the campus oriented questions. Campus और इंटरव्यू ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं. मैं हमेशा से सीनियर्स को भी आपके बोलता आता हूँ इस बारे में. These are the questions which are bound to be asked in the interview.
I'll move further. Now the other question is beverage. We have the concept is clear with regard to beverage. Now I would like to make you understand about the word non-alcoholic. See, anything which does not have alcohol is non-alcoholic. Correct. Now blindly we cannot say this particular drink has alcohol, this particular drink has no alcohol. There must be certain kind of percentage, certain kind of, those who are speaking in between, please don't, आप mute कर लीजिए. If you want to say something, please speak in the chat box. अपना mic check कीजिए, किसी का mic unmute. So what I was saying, yeah. So non-alcoholic beverage, the definition of alcoholic beverage we need to know. That you will come across in your second, third semester. Alcoholic beverage, as per WHO, World Health Organization, that defines WHO, it's alcoholic beverage. It says that any beverage which contains 0.5%, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 0.5% to 75.5% alcohol volume by volume. कितना बोला मैंने? 0.5% से लेकर के 75.5% of ethyl alcohol by volume is known as alcoholic beverage. अब आप जितने भी alcoholic beverage के बारे में जानते हैं, be it beer, whiskey, brandy, rum, gin, vodka, tequila, wine, या जो भी आपके मन में आता है, all these comes under this bracket only. 0.5% से लेकर 75.5%, है ना? 0.5% से अगर नीचे होगा तो इसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? तो इसको हम डालेंगे नॉन अल्कोहलिक बेवरेज कैटेगरी में. इज द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. To classify as under the category of non-alcoholic beverage, the beverage must contain alcohol not more than 0.5%. एक आंसर आप देंगे, कोई भी पूछेगा आपसे तो. Now, ऐसे कौन से आप प्रोडक्ट्स जानते हैं जहां पर अल्कोहलिक कंटेंट जो होता है अल्कोहल का वो 75.5 से भी ऊपर होता है? जानते हैं ऐसा कोई प्रोडक्ट आप लोग? You can reply to me in the chat box also. ऐसा कोई प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं जिसमें अल्कोहलिक कंटेंट जो होता है वो 75.5 से भी ऊपर होता है? No, sir. No, नहीं. sir. अच्छा, दैट नीड नॉट No, बी अ sir. बेवरेज. वो बेवरेज होने की, मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ. दैट कैन बी एनीथिंग. रम, नो रम, आदित्य प्रताप सिंह, दैट्स अ रॉन्ग आंसर. रम इज नॉट द राइट आंसर. Rum must contain below 75.5. You know why this is saved? Sanitizer, excellent answer, Ayush Kumar. Sanitizer, yes, it contains 95, 92, 93% of alcohol. जितने भी जर्म्स वगैरह आप या फिर आप कभी कभी नोटिस करोगे जो मेडिसिन होती है, कफ सिरप होता है, उसमें भी काफी ज्यादा होता है. इसलिए लोग बोलते हैं कफ सिरप ज्यादा पी लेते हैं बहुत लोग, तो आप देखते हो डिजीनेस होता है, दिमाग खराब होने लगता है या फिर नींद बहुत आती है. all these are the products जहां पर अल्कोहल आपका 75.5 से ऊपर होता है. 75.5 से ऊपर इसलिए नहीं हम लोगों के लिए होता है बिकॉज WHO ये बोलता है बिकॉज ह्यूमन बॉडी कैन नॉट टॉलरेट मोर देन दैट. आपने सुना होगा अक्सर कि कंट्री वाइन पी के कुछ लोग जो देशी कहते हैं ना, वो देसी दारू पी के बहुत लोग मर गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज कहीं अल्कोहल जो उसके अंदर वो कंट्रोल नहीं है. इथाइल अल्कोहल जो है वो 75 से ऊपर हो सकता है या हो सकता है वो कन्वर्ट होकर मिथाइल अल्कोहल बन गया हो. खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे अगले सेमेस्टर में. इस सेमेस्टर में चर्चा हम रखेंगे यहीं तक अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक के बारे में. आई होप कि आपको क्लियर हो गया. आगे बढ़ते हैं. इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू रेज हैंड्स. नाउ क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं नॉन अल्कोहलिक बेवरेज का, सो दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. वन इज Bacardi is not the right answer. It's Vikram. Anyways, so classification is stimulating, refreshing, and nourishing. Ranveer Kundra has raised his hand. Ranveer, yes, tell me, Ranveer. Sir, what do you mean by potable liquid? Potable मतलब रणवीर, it's अगर मैं हिंदी में आपको बोलूं तो ये पीने योग्य. Anything which is potable. Potable. No, you understand. Very good question that you have asked. In fact, and I'll take this opportunity to inform the class about the broad meaning of this word. Okay, sir. We drink water, correct? आप और हम पानी पीते हैं. Yes, sir. पानी तो बगल में जो तालाब में पानी है, क्या हम उसको पी सकते हैं? No, sir. वी कैन नॉट, है ना. लेकिन अगर कहीं मरने की बारी आ जाएगी तो पिएंगे. बियर ग्रिल्स बनने की बारी आएगी तो भी पी सकते हैं. पोर्टेबल इज समथिंग व्हिच इज पीने योग्य, है ना. Okay, sir. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड. क्लियर है? आगे बढ़े. Yes, sir. तो क्लासिफिकेशन में हम लोग जो बात कर रहे थे, तो हम लोग बात कर रहे थे कि 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं हम नॉन अल्कोहलिक बेवरेज को. वन इज स्टिमुलेटिंग, अदर इज रिफ्रेशिंग एंड द थर्ड इज नरिशिंग.
बहुत सिंपल है। स्टिमुलेटिंग इज समथिंग विच स्टिमुलेट्स। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है? वो एक्सेलरेट करना। आप सुने होंगे ना, कैटलिस्ट होता है, आपने पढ़ा होगा, जिससे केमिकल रिएक्शन एक्सेलरेट। आग जल रही है, थोड़ा सा उसमें पेट्रोल छिड़क दो, स्टिमुलेट हो गया। होता नहीं होता है, अचानक से भड़क जाता है। स्टिमुलेट मतलब जैसे हम कभी थक जाते हैं तो क्या करते हो, घर आते हो तो यार एक कप कॉफी पिएंगे, और भी शौकीन हो और भी मतलब थक जाते हो तो बोलते हो ब्लैक कॉफी पिएंगे, है ना, स्ट्रॉन्ग चाय पिएंगे। क्यों करते हैं ऐसा? स्टिमुलेट, इट स्टिमुलेट्स अस। और जब अल्कोहलिक बेवरेज का भी क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें भी स्टिमुलेटिंग में ही आते हैं अल्कोहलिक बेवरेज भी। एनीवेज, फिलहाल हम लिमिट कर रहे हैं नॉन अल्कोहलिक पे। टी, कॉफी आर द स्टिमुलेटिंग नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। रिफ्रेशिंग का मतलब ये होता है कि जहां पर आप बहुत थके हुए हो, लेट्स से बहुत गर्मी का समय है, घर आके पहले चीज क्या पियोगे? चाय पियोगे कि नींबू पानी पियोगे? नींबू पानी। ऑब्वियसली, है ना? नींबू पानी। क्यों? क्योंकि आपको रिफ्रेश करना है, स्टिमुलेट नहीं होना। ऑलरेडी दिमाग इतना गर्म हो रखा है पहले से, हमको रिफ्रेश होना है अपने को। करेक्ट। नारियल पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, स्क्वैश हो गया, या जो आप दिल्ली वगैरह साइड में रहते हैं उनको पता होगा, ये आपका जो कंचा होता है जिसको बोलते हैं, व्हाट डू यू से, सोडा जो बोलते हैं उसको, जो बनाते हैं ठेलों पे, वो इधर भी मिलता है अक्सर। पुदीना का पानी वगैरह हो गया, जलजीरा हो गया, ऑल दीज आर रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स। नाउ द थर्ड कम्स द नरिशिंग ड्रिंक्स। नरिशिंग ड्रिंक्स क्या है? ये वही ड्रिंक्स है जिसको पीने के लिए हम लोग बचपन से ही डांट खाते आ रहे होंगे। सर गन्ना का रस, गन्ना का जूस। गन्ने का जूस हो गया, या दूध पीने के लिए आप लोग डांट खाते होंगे घर पे, बचपन छोटे रहे होंगे तो दीज आर नरिशिंग। चॉकलेट शेक, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा। अरमान अहमद प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अगर कुछ नहीं बोलना है तो, आपकी बैकग्राउंड की आवाज तो। हाँ, चॉकलेट जूसेस हो गया, या फिर आपको लस्सी हो गया, वॉट जो भी आपको समझ में आता है। नहीं सॉरी, लस्सी रिफ्रेशिंग में आ जाएगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पर आपका? क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे ऑल ऑफ यू? गुड। आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. हम लोग एड्रेस करेंगे। अब क्या पढ़ना है आपको? सिलेबस में पढ़ना है आपको, एक एक करके चाय के बारे में पढ़ना है, कॉफी के बारे में पढ़ना है, और नॉन अल्कोहलिक बेवरेज के बारे में और भी पढ़ना है। आज हम जो एड्रेस करेंगे टॉपिक को, ये तो आपका पूरा इंट्रोडक्शन था टॉपिक का। अभी तक आपको नटशेल में समझा दिया मैंने पूरा टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या क्लासिफिकेशन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्लासिफिकेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट विद द टर्म, विद द बेवरेज विच इज कॉफी। एक एक बेवरेज को हम एड्रेस करेंगे। कॉफी को हम एड्रेस करते हैं पहले। एक बार देख लो पहले स्टिमुलेटिंग बेवरेज को, छोटा सा जो मैं बता रहा था। इट इज द बेवरेज विच रेजेस द लेवल ऑफ फिजियोलॉजिकल और नर्वस एक्टिविटी इन द बॉडी ऑफ एनी बायोलॉजिकल सिस्टम। चाय पियेंगे तो नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती? नर्वस सिस्टम अफेक्ट करता है। कॉफी पीते हैं तो नींद नहीं आती, किक स्टार्ट होता है। क्यों होता है? सुबह सुबह नींद नहीं खुल रही है, लोग कॉफी पीना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि आपको स्टिमुलेट करता है, नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है आपका। दिस कैन बी नेचुरल ड्रिंक्स लाइक टी एंड कॉफी, और वाटर बेस्ड ड्रिंक्स लाइक आर्टिफिशियल जूसेस जो आप मार्केट में देखते होंगे। Yes, due to caffeine, correct. And the purpose of these drinks are to make us stay awake and alert, जो हम करते भी। अब कैफीन में भी कौन सा है उसके बारे में रुद्रांश हम आने वाले स्लाइड्स में समझेंगे इस चीज को। देखिए, कॉफी जो बेसिकली है, इट कम्स फ्रॉम ए प्लांट। बहुत कॉमन ड्रिंक है, घर घर में बनती है, आप सब लोग जानते होंगे। बहुत लोग शौकीन भी होंगे कॉफी का। आज के डेट में बहुत फेमस कॉफी चेन्स है मार्केट के अंदर में। सीसीडी है, स्टारबक्स है ना, ऑल दीज आर देयर। आजकल तो चाय का भी चेन आ गया है, एमबीए चाय वाला, यू नो, एंड ऑल दीज जाइंट चेन्स हैव कम अप, स्टार्टअप्स आ गए हैं वापस। तो कॉफी के बारे में पहले हम समझते हैं। बेसिकली इट इज अ प्लांट विच कम्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ रूबिका फैमिली, RUBACEA। अभी आगे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसा बताया जाता है कि ये पहली बार यमन में ग्रो हुआ था, अरेबिया में, यूरोपियन वर्ल्ड में, और धीरे धीरे ये पूरे के पूरे वर्ल्ड, अक्रॉस वर्ल्ड फैल गया। ब्राजील, क्यूबा, श्रीलंका, इंडिया। Now, when I say India, I would invite some answers here. Who can tell me which part of India is famous for coffee plantation? Assam. Sir, Coorg. Someone said Assam. Someone Sir, said. Coorg. यस सर, Sir, Kerala. आसाम सर, आसाम। Reveal your identity. देखो, ऑनलाइन क्लास में आपको बताना पड़ेगा आप कौन बोल रहे हैं। देखो, मेरे लिए मुश्किल थोड़ा सा है। किसने आंसर Sir, किया? Kerala. Kerala. Sir, Assam, sir. Coorg. अपना नाम भी बता दीजिए, कौन बोल रहे हैं आंसर? Sir, Ranveer Kundra रणवीर from कुंद्रा, आप क्या आंसर दे रहे हो? Sir, Coorg, हाँ, South कुर्ग। India. कुर्ग इज, एंड यू कैन बेटर आंसर असम। चैट बॉक्स में आंसर कीजिए आप लोग। Gopal Mishra, Assam. ठीक है। So Gopal, Assam is famous for tea, by the way, and Coorg is an excellent answer. Coorg is very rightly said. It is in Karnataka. It is you know, near to Mysore. 11 hours का लगभग ये जर्नी है। और Madikeri is the town. The town is Madikeri. Please mute yourself जिनको भी आप नहीं पूछना है। किसी का बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। What's wrong with this? कौन है?
चलो, तो कुर्ग इज द राइट आंसर। विल गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। सी, थोड़ा सा देख लेते हैं कॉफी को डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से वन वर्ड के क्वेश्चन बहुत सारे निकल के आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉफी इज ब्रूड बेवरेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रोस्टेड सीड्स ऑफ सेवरल स्पाइसेस ऑफ एन एवरग्रीन श्रब जीनस कॉफिया। आप पढ़ते होंगे ना, बायोलॉजी में पढ़ते होंगे आप प्लांट्स के बारे में, जो 12th में होंगे या 10th में होंगे आप तो। The two most common source of coffee beans are highly regarded as Coffea arabica and Coffea canfora। ध्यान से याद कर लीजिए इस चीज को। दो सबसे फेमस वैरायटी कौन सी है कॉफी की? Coffea arabica and Coffea canfora। Now Coffea canfora जो है, इसका दूसरा नाम है Coffea robusta भी बोलते हैं, ROBUSTA। नोट कर लीजिएगा जो भी पॉइंट आपको इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कॉफी प्लांट है जो वाइडली पॉपुलर है एंड दीज आर ड्रिंक ऑलमोस्ट 70 कंट्री तो मैंने वैसे ही बताया है, बट आप समझो कि दिस इज मोर देन 150 कंट्रीज में इसको आप कंज्यूम करते हैं। स्लाइटली एसिडिक होता है एंड कैन हैव द स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमंस बिकॉज ऑफ इट्स कैफीन कंटेंट। रुद्रांश ने बिल्कुल सही हम लोग को बताया था। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। आपने जरूर पिया होगा अपने कॉफी। जनरली हम लोग थोड़ा शौक से पीते हैं ना, चाय तो हम कॉमनली पी लेते हैं, कॉफी हम थोड़ा मिजाज से पीते हैं हम लोग, है ना। हम घर में भी ऐसा करते होंगे शायद से, जनरली मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता जरूर है, आज कॉफी पियेंगे, है ना। और कभी बाहर जाते हैं सीसीडी या स्टारबक्स कहीं घूमने चले गए तो जरूर फिर ट्राई जरूर करते हैं, कैपेचिनो लाते और पता नहीं क्या क्या जो होता है। एनीवेज, आइए मैं कुछ फोटो के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश किया मैंने आपको कि लुक एट, विजुअलाइज हाउ दिस कॉफी बीन्स लुक लाइक, कैसा प्लांट होता है, कैसा दिखता है, और ये हार्वेस्टिंग के बाद देखिए ऐसा दिखता है। दो वैरायटी जो मैंने आपको बताया, कॉफिया अराबिका एंड कॉफिया कैनफोरा। इसका दूसरा नाम रोबस्टा भी होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ निकल के आता है अपने को, कॉफी का कह सकते हो आप ब्लेंडिंग जो होती है, रिप्लेसमेंट जो होता है। सी, कॉफी एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, ये एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होता है, तो इसको आप ब्लेंडिंग करते हैं, या फिर आप कह सकते हो मिक्स करते हो। किस चीज से मिक्स करते हो? चिकोरी। चिकोरी आपने पता नहीं सुना है, नहीं सुना है तो इस क्लास के बाद जरूर गूगल कर लीजिएगा, आपको चिकोरी दिख जाएगा। प्लांट होता है, उसके रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, जड़ का इस्तेमाल करते हैं, और उस जड़ के इस्तेमाल करने के बाद से आपको रोस्ट करते हैं एंड इट टेस्ट लाइक कॉफी, बहुत हद तक कॉफी से टेस्ट करता है। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वॉच दिस शो दैट इज I think being broadcasted on Zee TV. It is being sponsored by Delhi government. Business Blasters, देखते हैं आप लोग? Can you hear me guys? No, sir. मेरी आवाज नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। आ रही है सर। आ रही है सर। Someone said नहीं आ रही है, तो आ मैं रही है सर। गुड, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा था कि how many have you seen this program by the name of Business Blasters? नो सर। नहीं, आप No, देखिए, sir. मैं आपको थोड़ा रिकमेंड करता हूँ इस शो को देखने के लिए। आई थिंक सैटरडे संडे में ब्रॉडकास्ट करता है, 7 बजे से जी टीवी पे आता है ये। दिल्ली गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर करी इस प्रोग्राम को, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें क्या कर रहे हैं कि क्लास 12 के बच्चों को कुछ पैसे दे रही है सरकार, 20-20 हजार रुपए के आसपास दे रही है, और 3-4 लोगों की टीम बनी हुई है। वो टीम क्या करती है, अपना बिजनेस कॉन्सेप्ट, अपना बिजनेस आइडिया लेके आती है, और फिर उसके बाद से उसको 3-4 एंटरप्रेन्योर उसको मिल करके उसको नरिश करते हैं, उसको मेंटरिंग करते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। लगभग 60,000 या 66,000 तो स्टार्टअप रजिस्टर हो गए हैं दिल्ली के अंदर में बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। बहुत अच्छी स्कीम है, मैं रिकमेंड करूंगा, देखिए आप इसको। Why I am saying about this particular show, because I think 3-4 weeks back I was watching this show and 3 or 4 students from Delhi school, Delhi government school, आज government school सारे बच्चे होते हैं वैसे, वो आए और उन्होंने क्या किया कि कॉफी का एक रिप्लेसमेंट लेके आए। तो बहुत, चूंकि ये मेरा सब्जेक्ट भी रहा है, तो बहुत नेचुरली मेरे माइंड में आया चिकोरी को शायद लेके आए होंगे। Yes, sir, मैंने देखा है आपने वो एपिसोड? Yes. हाँ, बट वो चिकोरी नहीं था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि खजूर के बीज, उसके दादाजी ने कोई रेसिपी निकाली थी, खजूर के बीज को, मतलब सीड्स को उन्होंने रोस्ट किया, और रोस्ट करके उसको निकाला, और जब वो पिया उन्होंने कॉफी को, मनीष सिसोदिया वाज देयर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, और 2 एंटरप्रेन्योर और थे। उन्होंने बोला कि दिस इज नेक्स्ट टू कॉफी, मतलब रिजेम्बलेंस इतनी क्लोज है आपको। आप देखिएगा इस एपिसोड को, जरूर देखिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चिकोरी इज वन ऑफ दैट रिप्लेसमेंट ऑफ कॉफी, है ना। थोड़ा सा कैफीन भी कम होता है। सिमिलरली वो जो बताया खजूर के बारे में, जो बता रहा हूँ आपको मैं, डेट के सीड्स के बारे में, वो भी एक रिप्लेसमेंट है।
ओके, वंस राइप कॉफी बेरीज आर पिक्ड प्रोसेस, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग प्रोसेसिंग ऑफ कॉफी हम देख रहे हैं, ठीक है। जब कॉफी बीन्स पक जाती है, कॉफी बेरी को पिक करते हैं, कॉफी बीन्स कैसी दिखती है? कॉफी बीन्स ऐसी दिखती है। जिनको भी प्रॉब्लम हो, देखो ये कॉफी बीन्स है, मेरे कर्सर को देखो, ये कॉफी बीन्स है ना, ये प्लांट है और ये उसके बेरीज हैं जो निकल गए हैं। जब ये पक जाती हैं, कॉफी बेरीज आर पिक्ड प्रोसेस टू रिमूव द मेसोकार्प। मेसोकार्प का मतलब होता है आउटर कवर, आपने जरूर पढ़ा होगा अपने ब्रांड का जब स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया होगा बेकरी के अंदर में, है ना। द सीड्स आर देन रोस्टेड अंडरगोइंग सेवरल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। रोस्टिंग का मतलब होता है ड्राई हीट पे आप उसको सेक, जो आप करते भी हैं, रोस्टिंग करते हैं, रोस्ट चिकन एंड ऑल। दे आर रोस्टेड टू वेरियस डिग्रीज डिपेंडिंग अपॉन द डिजायर्ड फ्लेवर। जितनी ज्यादा रोस्टिंग करोगे उतनी स्ट्रॉन्ग कॉफी बनेगी, पहली बात, ठीक है। आप देखते होंगे मार्केट में ऐसी कॉफीज अवेलेबल है जो बहुत डार्क कॉफी होती है, ऐसी कॉफी जो लाइट कॉफी होती है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि लाइट कॉफी को 2 चम्मच मिलाओगे तो डार्क बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उनकी रोस्टिंग हुई थी उस लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, तभी वो इस तरह से कॉफी। जैसे डार्क चॉकलेट्स, जैसे आपका व्हाइट चॉकलेट डार्क चॉकलेट है, उस तरह से डार्क कॉफी और लाइट कॉफी है। दे आर देन ग्राउंड, ग्राउंड मतलब उसको पीस दिया जाता है, एंड ब्रूड टू प्रोड्यूस लिक्विड कॉफी विच इज नोन एज द कॉफी डिकॉक्शन। ध्यान से कीवर्ड्स को मैंने बोल्ड किया है, नोट कर लीजिएगा आप इसको, कॉफी डिकॉक्शन। देखिए प्रोसेसिंग ऑफ कॉफी को समझते हैं एक बार हम लोग। कॉफी प्रिपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग कॉफी बीन्स इनटू अ बेवरेज। द प्लांट में जो बीन्स लगा उसको बेवरेज में बनाने की पूरी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? प्रोसेसिंग ऑफ कॉफी या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, जो भी आप बोलना चाहें। While the specific needs needed vary with the types of coffee desired with the raw material being utilized, the process composed of basically 4 steps. ये 4 मेन स्टेप होते हैं। पहला है रोस्टिंग, दूसरा है ग्राइंडिंग, तीसरा है ब्रूइंग और लास्ट है आपका filtration. एक सेकंड गाइस, this meeting is going to end in 10 minutes. Anyways, the class is also going to get over in 10 minutes, no problem. Raw coffee beans must be roasted. Now coffee beans कहां से आती हैं? I'm waiting for the answer in chat box. कॉफी बीन्स कहां से आएंगी? सब प्लांट से। Someone has said from the fruits. Fruits is wrong answer. Yeah, cocoa tree is wrong answer. Aditya Pratap Singh, Aditya Vikram Bajaj. Coffee plant. The name of coffee plant is Caffeia arabica, Caffeia robusta या Caffeia canfora. याद कर लेना, पहले बता रहा हूँ मैं। रोस्टेड कॉफी बीन्स मस्ट देन बी ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब उसको आपने चर्निंग किया। कैसे करते हैं? आप लोग करते हैं मिक्सर वगैरह में, आप घर में ग्राइंडिंग करते हैं इस चीज का। बहुत लोग फ्रेश कॉफी ब्रू करते हैं। कैसे करते हैं? कॉफी बीन्स खरीदते हैं मार्केट से, उसको आप देखते होंगे जब मार्केट में जाते होंगे या फिर सीसीडी वगैरह में जाते होंगे पीने के लिए, तो कॉफी वहीं पर वो ग्राइंड करते हैं, है ना। आपने नोटिस किया होगा तो। ब्रूइंग, जब आप हॉट वाटर डालते हैं कॉफी में तो इट इज ब्रूड, ठीक है, कॉफी को ब्रूइंग होती है। और फाइनली फिल्ट्रेशन, जो भी आपको एक्स्ट्रा आप कह सकते हो कि जो थिक पाउडर है उसको अगर फिल्टर करना है तो उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं कॉफी के। तो डिटेल्स में अगर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए, दिस इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू, व्हाट आई वांटेड टू शो यू। सबसे पहले बीन्स को प्लग किया, वो राइप हुआ, प्लग किया, उसको ड्राई किया, स्किन किया मतलब मेसोकार्प को हटाया, और फाइनली स्ट्रिप किया। ऐसे ऐसे स्ट्रिपर्स बैठे हैं मार्केट में जो कि केवल कॉफी बीन्स ही उगाते हैं, केवल कॉफी बीन्स ही शिप करते हैं। ये बहुत अरबों का व्यापार है ये। रोस्टिंग, रोस्टिंग द कॉफी ट्रांसफॉर्म्स द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉफी बीन्स इनटू रोस्टेड कॉफी प्रोडक्ट्स। कैसे कैसे रोस्टिंग कर सकते हैं? रोस्टिंग हो सकती है लाइट रोस्टिंग, जो मैंने आपको बताया, मीडियम रोस्टिंग, फुल रोस्टिंग एंड हाई रोस्टिंग। हाई रोस्टिंग इज बेसिकली एक्सटेंचुएट्स द स्ट्रॉन्ग बिटर एस्पेक्ट्स ऑफ कॉफी, मच ऑफ द ओरिजिनल फ्लेवर इज लॉस्ट। आप देखते होंगे कॉफी को बहुत लोग ना कई बार बॉईल कर देते हैं। इट इज सेड दैट बॉइलिंग द कॉफी इज लाइक किलिंग द कॉफी। आप उसका एक्चुअल फ्लेवर ही मार देते हैं, है ना। वो बिटर हो जाता है कॉफी, कभी कभी टेस्ट करोगे तो बिटर हो जाएगा कॉफी। और बिटर कॉफी किसी को पसंद नहीं आती है। स्ट्रॉन्ग कॉफी सबको पसंद आती है, बिटर कॉफी पसंद किसी को नहीं आती है। हाई रोस्टिंग में वही बोलने की कोशिश की जा रही है। अगला है ग्राइंडिंग। द होल रोस्टेड कॉफी बीन्स आर ग्राउंड विच इज ऑल्सो नोन एज मिलिंग। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, मिलिंग। ये सारे वर्ड आपको, जो आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बियर पढ़ेंगे ना अगले सेमेस्टर, अगले साल में 3rd सेमेस्टर में, आपको ये यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज वर्ड्स। मिलिंग टू फैसिलिटेट द ब्रूइंग प्रोसेस, इट प्रिजर्व्स द फ्लेवर एज वेल एज पॉसिबल। कैसे कैसे ग्राइंडिंग की जाती है? फाइन ग्राउंड, मीडियम ग्राउंड कॉफी, मीडियम ग्राउंड या कोर्स ग्राउंड पाउडर। ये तीनों अलग अलग टाइप्स हैं। जो पाउडर आपको थिक हो सकता है, थिन हो सकता है, या पाउडर फॉर्म में हो सकता है। फाइनली ब्लेंडिंग, जो मैंने आपको बताया, चिकोरी सीड से करते हैं, आज की डेट में डेट सीड से भी करते हैं, रोस्टेड डेट सीड से भी करते हैं, उसको पाउडर कर देते हैं। दिस इज योर ब्लेंडिंग। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। मैंने सेशन को छोटा ही रखा है। अभी आगे हम लोग को टी के विषय में पढ़ना है, बट अभी मैं रोक रहा हूँ इसको बिकॉज
आई वांट टू गिव यू इन स्मॉल पीसेस ताकि ऊपर से ना आ जाए आपके। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके कैंपस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। नॉन अल्कोहलिक बेवरेज से क्वेश्चन जरूर निकल के आते हैं, और मैं सेशन अपना स्टार्ट इसी बात से किया था आपको, वाटर के बारे में जरूर पढ़ लेना। आज सेशन खत्म हो जाएगा, आज मौका मिले, कल मौका मिले, परसों जब भी मौका मिले आपको, 3 दिन सेशन चलेगा आपका केवल नॉन अल्कोहलिक बेवरेज के ऊपर में। इस पूरी वीक हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, तो जरूर पढ़ लीजिएगा वाटर के बारे में। मिनरल वाटर, स्प्रिंग वाटर क्या होता है, आरओ वाटर क्या होता है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है, ब्रांड्स पढ़ लेना इसके बारे में, क्योंकि सिलेबस में चूंकि नहीं है, बट एक चूंकि आता है एग्जाम में, एग्जाम नहीं सॉरी कैंपस में, तो मैंने आपको बताना जरूरी समझा। बाकी जो सिलेबस में उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चैट बॉक्स इज ओपन, क्लास लास्ट बच रहा है 4 मिनट का। मैं आपकी अटेंडेंस लगा देता हूँ एक बार, ताकि ये भी तो जरूरी रहता है ना, अटेंडेंस भी, तो इट इज वन थिंग विच इज नीडेड। क्लास में कुछ डाउट है तो आप इन द मीनवाइल आई एम टेकिंग द अटेंडेंस, आप पूछ सकते हैं मेरे से। एनी वन ऑफ यू इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? अभिषेक कुमार, यस सर। आदित्य प्रताप सिंह, आदित्य विक्रम बजाज, Present, sir. एहतसाम राजन, Present, sir. आज का खालको, आज का आकाश कुमार, आकाश कुमार, आकाश कुमार सिंह, प्रेजेंट सर। प्लीज म्यूट कर लीजिए, जिनका हो गया अटेंडेंस अपने आप को म्यूट रखिए। अलंकृत सहाय, अमन गौतम, प्रेजेंट सर। अमन राज, अमन राज, ओके। Me do one thing. अमन गौतम is absent ना? अमन गौतम प्रेजेंट सर। Present. अमन राज, एब्सेंट सर। अनीशा तिरके, प्रेजेंट सर। अंकित कुमार सिन्हा, प्रेजेंट सर। अंशिका, यस सर। अरमान अहमद, यस सर। अरमान खान, यस सर। अतुल्या पाठक, सर। आयुष कुमार, प्रेजेंट सर। चंदन, दिमल, दिविशा, जयमंगल, कार्तिक, छोड़िए, केविन लुइस, Present, sir. केविन लुइस, Yes, sir. Present. ठीक है। कुमारी अदिति, प्रेजेंट सर। कुशाग्रा, यस सर। मनीष, प्रेजेंट सर। मेहताब, मनीषा, प्रेजेंट सर। इंतखाब, Yes, sir. टाइम से क्लास में आया करो, हम एंट्री दे देते हैं, लेकिन क्लास में टाइम से आया करो। नवीलादिन, यस सर। रमजान, यस सर। मनीष, गोपाल, प्रेजेंट सर। मिली, यस सर। मोहित, यस सर। आदित्य, नायक आदित्य सतीश, निखिल त्रिपाठी, यस सर। नीरज सिंह, प्रेजेंट सर। निहार, प्रभात, प्रीति, प्रेजेंट सर। यस सर। पुलकित, यस सर। पुष्पेश, रंजीत, Present, sir. रणवीर, प्रेजेंट सर। ऋतुराज, यस सर। रोहित भारद्वाज, प्रेजेंट सर। राज, Present, sir. सारांश, सरीन, सत्यम, प्रेजेंट सर। कौन? सत्यम, यस सर। शशिकांत, शाश्वत, यस प्रेजेंट सर। शिवम, शशिकांत प्रेजेंट सर। हाँ ठीक लगा दिए, शिवम, शुभम, प्रेजेंट सर। सोनू, यस सर। शुभम ठाकुर, यस सर। तेज प्रताप, प्रेजेंट सर।
तुषार, वैभव, विद्या, Yes, sir. विशाल। Present, sir. ठीक है। Alright guys, this is it from my side for the day. Time is also up and I'll see you in my next session. कुछ परेशानी होगी तो you guys can reach me tomorrow. पढ़ के आइएगा। All the best. Thank you.